कैसे हैं आप? I hope you all are doing well. So in my last video I had a detailed analysis of CBSE sample paper and there was comparison of marks distribution also. Though I gave you the paper and you have not solved the problems of integration regarding definite integrals, which is very important and application based. In definite integral you have to study it, you have to understand different formula, different forms, and the methods. But now you have to use all that methods. Here I will discuss today definite integrals. Definite integrals will have some special properties, and we will find area under the curve, which is again very crucial part of your syllabus. And in paper also I think you have seen some questions where limit was there. I will start it today, and see in this chapter we have exercise 10.7, 10.1, 2 and 3. That exercises we have to do. Though up to last year's children there was limit as a sum, now it is deleted. So without doing limit as a sum, I am trying to make it understand the part of definite integrals. So let's get started. Definite integrals. So children, let us come for definite integrals. It is the very crucial part of this integral calculus. I have written f be a continuous function of x for a to b, and ax is equal to a to b fx dx, then a dash x is equal to fx, and integration of a to b fx dx. Let us write phi x from a to b. This I will write phi of upper limit, this is b, minus phi of a. See, already you have studied in physics. What have you studied? एरिया अंडर द कर्व. आपने वर्क डन पढ़ा था ना, वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व, एफ डॉट डी एक्स ऐसे. ऑल राइट, देन ये ए टू बी है. इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द एरिया, व्हाट आई विल राइट, ये कर्व था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है. अगर एरिया मुझे फाइंड आउट करना है तो आई विल जस्ट स्केच इट, एंड दीज आर द टू लिमिट्स. एरिया अंडर दिस कर्व, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं. सी लुक एट हाउ द एरिया, हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया. लिमिट एज ए सम इस बुक में था, बट दिस ईयर लिमिट एज ए सम इज डिलीटेड. सो व्हाट, दिस इज अ कर्व. इफ सपोज आई राइट ए टू बी, इतना ही मुझे फाइंड आउट करना है, तो आई विल डिवाइड इट इंटू स्मॉल रेक्टेंगल्स. y is equal to fx is a function. This is ax is equal to a, यहाँ पर a है and ये b है. I will divide this very small rectangle such that h tends to 0. Then area of this rectangle, first rectangle, right? Area of this first rectangle is basically h into fa. Why fa? See, ये h है and this height is what? fa. क्योंकि y is equal to fx है, अगर x is equal to a होगा तो ये कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, fa हो जाएगा, और ये ब्रेथ कितनी है, h है. तो सिमिलरली आई विल डिवाइड दिस अनदर. ये नेक्स्ट रेक्टेंगल नंबर 2, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, h इंटू एफ ए प्लस एच होगा. y एफ ए प्लस एच, क्योंकि यहाँ पर x कितना हो जाएगा, देखो ये x a है, दिस इज x इज इक्वल टू ए प्लस एच. ऑल राइट, x इज इक्वल टू ए प्लस एच, तो y एफ ए प्लस एच हो जाएगा, इसका एरिया ये हो जाएगा. तो दिस वे वी विल कैलकुलेट हेयर. n रेक्टेंगल्स बनाते हैं, बट दिस इज लिमिट एज ए सम विच इज डिलीटेड नाउ. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स. बेसिकली इन दिस फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव very easy problems without properties, but in second exercise I will discuss the properties of definite integrals also. I am going to take the first question. It is evaluate. I have to evaluate 0 to 1 2x square plus 3 whole square dx. इसको मुझे इंटीग्रेट करना है.
तो व्हाट आई विल राइट 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसको पहले आप ओपन कर लो, 4x raised to the power 4 plus this will become 12x square plus 9 dx. Then I will write 4 को बाहर लिख दो, इंटीग्रेट करोगे x raised to the power 5 upon 5, ऑलराइट, प्लस 12 इधर लिख देना, x cube upon 3 I will write एंड प्लस 9 x लिखोगे. नाउ सी, यहां पर आपको c नहीं लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, c विल नॉट बी देयर, ये याद रखना, c नहीं लिखना. जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल था उसमें आप c लिख रहे थे, बट हेयर यू आर नॉट गोइंग टू राइट c. अब जब ये इंटीग्रेट हो जाएंगे तो यू विल राइट सिंपली लिमिट्स ओवर हेयर, ये लिमिट्स लिख दोगे. अब क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे, अपर लिमिट ये है 1 raised to the power 5, 1 raised to the power 5 upon 5 minus 0 upon 5 plus 12, this is 1 cube upon 3 minus 0 cube upon 3 plus this is 9 into 1 minus 0. Alright, this will become, ये 4 upon 5 है plus ये 12 upon 3 and plus 9. This is the answer. Alright, you can do this. Now you can calculate it. Okay, so let us move for the next question. See, this is a little bit different kind of problem. It is 0 to 1, 3x square plus 2x plus k dx is equal to 0. Find the value of k. Children, this was one marker question in CBSE exams. So, see, look here, what I will do. I will straightforward integrate all these. I will write 3x cube upon 3, alright, plus 2x square upon 2 and plus kx, alright. This is equal to 0 and the limit is from 0 to 1. This way I will write. Now, what I will do, see, इसको cancel कर देते हैं and replace the limit. ये लिमिट रिप्लेस करोगे 1 क्यूब, ऑलराइट, प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट लिखो, माइनस लिखोगे और लोअर लिमिट ये 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस के इंटू 0. दिस इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ के. 2 प्लस के इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव मी के इज इक्वल टू -2. So this way you will do the problems. One trigonometric question also I am going to do. अब मैं एक trigonometric question लेने जा रही हूँ. This is 0 to pi half. The question is 0 to pi half cos square x dx. Alright, you know how to do this. Cos square x को कैसे करते हैं आपको आता है. You will write 0 to pi half and cos square x is 1 plus cos 2x upon 2 dx. Now integrate करो इसे इंटीग्रेट करोगे तो हाफ तो लिख दो बाहर से. This will become x plus sin 2x upon 2 and 0 to pi half. Now replace the limits. अपर लिमिट रिप्लेस करो, पहले हाफ तो बाहर रहने दो. अपर लिमिट रिप्लेस करोगे पाई हाफ प्लस साइन 2 इंटू पाई हाफ अपॉन 2 माइनस लिखो, माइनस वोट 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2. सो यू कैन फाइंड इट. ये हाफ देखो, ये पाई हाफ है, साइन पाई इज वोट 0 और ये सब 0 है. आपका आंसर कितना आ गया, पाई बाय 4. All right, this is the answer. Now I am going to do a different kind of questions. It is definite integral by substitution. All right. So look at this again. Next question. It is definite integral by substitution. Right. This will be exercise number 7.10. Which exercise? This I will go for 7.10. Earlier the exercise from NCERT, it is this exercise, integration by substitution. Important है, बहुत important है, क्योंकि इसके बिना तो मुश्किल हो जाती है आगे को. जब हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we have to change the limits also. That I'll show you. या तो लिमिट चेंज करेंगे,
अगर डायरेक्ट रखते हैं। और अदरवाइज व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि लास्ट में x के टर्म्स में ही ले आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको जो लिमिट होती है उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। आई शो यू जस्ट नाउ। देखो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को, यू नो दिस, x रेज टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आई एम राइटिंग रीजन, इसमें स्क्वायर रूट था, देन दिस विल गिव मी 5x रेज टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू 2t dt. All right, this will give me what, ये 5x स्क्वायर और dx, इसके प्लेस पे आई विल राइट 2t dt. देन लिमिट को भी चेंज कर दे। देखो when x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू हाउ मच, देखो t स्क्वायर कितना लिखना है, -1 रेज टू द पावर 5 प्लस 1, दिस इज 0, देन t इज इक्वल टू 0. when x इज इक्वल टू 1, लिमिट चेंज कर दी मैंने, when x इज इक्वल टू 1, दिस विल गिव मी t इज इक्वल टू, x की वैल्यू रख के t में चेंज कर दो, t इज इक्वल टू -1, 1 रेज टू द पावर 5 प्लस 1, दिस इज 2, t स्क्वायर इज 2, देन t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो द लिमिट्स आर व्हाट, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 2. दीज आर द टू लिमिट्स. एंड ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर, ये टी आ गया टी, और इसके प्लेस पे 2t dt कितना आ गया, देखो 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2t स्क्वायर dt. इंटीग्रेट करोगे तो t क्यूब अपॉन 3 एंड 0 to √2. दिस आई विल राइट. अब आप सीधे सीधे इसमें लिमिट से रिप्लेस कर दो. देखो ये 2 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 3 अपॉन 3, -0 लिखोगे तो 0 आएगा. दिस इज द आंसर. ऐसे आप लिमिट चेंज करके आप आंसर लिखोगे. ऑलराइट, लिमिट आपको ओके. नाउ सी दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू डू दिस. इसमें क्या लिखा है, 0 to π/4 dx अपॉन cos क्यूब x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin 2x. इसे आप करोगे कैसे, यू विल राइट 0 to π/4, ये लिमिट है, dx अपॉन, यू नो दैट cos क्यूब x इज ऑल राइट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x cos x. ऑल राइट. अब ये cos क्यूब x है, ऐसा आपने इंडेफिनिट में करा होगा कई बार, ऐसा ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है. एंड dx अपॉन, ये तो cos क्यूब x था, मैं एक 2 और एक cos x फिर से बाहर निकाल देते हैं, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ sin x अपॉन cos x. देखो एक cos x था ना, स्क्वायर रूट के बाहर cos x किया तो क्या होगा, यहां पर डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसे ऐसा किया, ये sin x अपॉन cos x इंटू में cos स्क्वायर x किया, तो ये cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट के बाहर आके कितना हो गया, cos x हो गया. दिस आई हैव डन. नाउ इट्स वेरी गुड. अब ये बहुत अच्छा हो गया. देखो ये हो गया sec टू द पावर 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, आई विल टेक 10x इज इक्वल टू t स्क्वायर, देन दिस विल गिव मी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt. चेंज द लिमिट. सी लुक हियर, व्हेन x इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर इज इक्वल टू 10 0, दिस इज 0, t is equal to 0. x is equal to π/4, t square is equal to 1, t is equal to square root of 1. This I will write 1. So this will become 0 to 1. और ये sec स्क्वायर x एक बच जा रहा है अभी, और एक sec स्क्वायर x dx के प्लेस में 2t dt, ये तो आपको करना आता है, अपॉन t. इस t से इसको कैंसिल कर दीजिए. इस sec स्क्वायर x को राइट डाउन. What are you going to write this sec स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x. ये लिमिट कन्वर्ट करना वेरी नेसेसरी, इसे आप पहले कन्वर्ट कर लेना, इस लिमिट को लिख लेना. अब जो ये t sec स्क्वायर x बचा है, इस sec स्क्वायर x को अगेन यू विल राइट 1 प्लस 10 स्क्वायर x, एंड 10 स्क्वायर x को आप लिखोगे t टू द पावर 4. दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. सी लुक हियर. अब मैं यहां पर लिखूंगी, क्योंकि मैंने ये लिमिट्स जो है ये t की लिख दी है. वॉट आई सेड 0 to 1, दिस इज 1 प्लस 10
स्क्वायर एक्स एंड ये 2 बचा, ये डी टी है, डी एक्स नहीं है। 0 to 1 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 और 2 डी टी। 2 इज आउटसाइड, इंटीग्रेट करोगे t प्लस टी रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 0 to 1। ये आप इसमें लिमिट रख दोगे तो दिस विल गिव यू द आंसर। दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 5 2 अपॉन 5। ऑलराइट, दिस इज 2 अपॉन 6 अपॉन 5। द आंसर इज 6 अपॉन 5। और एक यहाँ 1/2 बाहर था, ये 1/2 है ना, ये ऑलरेडी 1/2 यहाँ हो रहा था, उस 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एक 1/2 यहाँ स्टार्टिंग से ही था, देखो ये 1/2 था और यहाँ भी वो 1/2 यहाँ कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर ये 1/2 ऑलरेडी था।